Yes, next video on the topic surface area and volume. Topic of discussion is conversion of solid from one shape to another. Means suppose you want to a candle of any shape. Let me give you an example. Suppose you want to make candles of any shape. You have to heat the wax in a metal container till it becomes completely liquid. Then you have to pour into another container which has the some special shape that you want. For example, take a candle in the shape of solid cylinder, melt it, pour the whole molten wax into another container shaped like a rabbit. On cooling, you obtain a candle in the shape of rabbit. The volume of the new candle will remain the same as the volume of the earlier candle. Means when you have to convert one solid into another solid, you keep this thing in mind that the volume of the wax or volume of any metal will remain the same. And we will use the same concept in solving these questions. I hope you understand the concepts. Let me take first question number 1, exercise 13.3. A metallic sphere of radius 4.2 centimeter is melted and recast into a cylinder of radius 6 centimeters. The question is, find the height of the cylinder. I ask you, the concept will remain same. आप कहेंगे the volume of the sphere, मतलब first line you can write volume of the metal in the form of sphere and cylinder remain the same. Volume of the metals, I am taking question number 1. Volume of metal in case of sphere and cylinder will remain same. That is 4 by 3 pi r cube is equal to pi r square h. This is the concept. Here you can write radius of sphere is 4.2 centimeter and radius of cylinder is 6 centimeter. But only you have to understand the concept, otherwise this portion has easy calculations as comparison to previous one. Height h है, ठीक है, you can substitute their values. Pi cancelled. This r is 4.2 whole cube into 4, 3 into 6 is h. So this implies h is equal to 42 into 42 into 42 into 4 divided by 3 into 6 into 6 into 10 की power 3 means 1000. Cancelled 7 and 7 and 14. So 7 into 7 into 14 into 14. So this will be 2744 upon 1000. That is 2.744 centimeter is the height. This is question number 1.
but this line you have to return the volume of the metal. In case of sphere and cylinder, it will remain the same. Question number 2, metallic sphere of radius 6 centimeters, 8 centimeter, 10 centimeter respectively are melted to form a single solid sphere. Find the radius of the resulting spheres. Sum of the volume of 3 sphere will be equal to the volume of 1 big spheres. क्वेश्चन नंबर 2 में आप लिखेंगे सम वॉल्यूम ऑफ 3 sphere is equal to volume of new sphere ऑफ रेडियस आर, कैपिटल आर ले लें क्योंकि आपने रेडियस ही निकालना है, और जो डायमेंशंस दी हुई हैं वो आपको दी हुई हैं 6, 8 एंड 10. मीन्स दिस इम्प्लाइज 4/3 पाई 6 क्यूब, 8 क्यूब एंड 10 क्यूब will be equal to 4/3 pi r cube. So this implies r cube is 216, 512 plus 1000. 8, 2, 7, 1. This is 12 cube. Therefore, radius r is equal to 12. दिस इज क्वेश्चन नंबर 2. ऊपर एक ही लाइन लिखनी काफ़ी है कि द वॉल्यूम ऑफ द सम ऑफ 3 स्फीयर इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर. क्लियर? मीन्स आपने कम से कम एक ही लाइन में क्वेश्चंस को ऐसे ही कंप्लीट करना. ए 20 मीटर डीप वेल विद डायमीटर 7 सेंटीमीटर is dug and the earth from digging is evenly spread to form a platform. अब आप एक कुएं की मिट्टी को निकाल के एक प्लेटफॉर्म का मतलब होता है वो क्यूबाइड की शेप है, तो यहाँ पे लिखेंगे द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ टेकन आउट फ्रॉम द सिलेंडर इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड. क्लियर? लिख लीजिए वॉल्यूम ऑफ अर्थ, अर्थ का मतलब मिट्टी है, विल टेकन आउट फ्रॉम द सिलेंड्रिकल वेल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अर्थ used in making platform. Dimensions pi r square देख लीजिए 7 मीटर डायमीटर है, r स्क्वायर मीन्स 7/2 का होल स्क्वायर रेडियस हो जाएगी. डीप जो है वो 20 मीटर है. पाई r स्क्वायर h इज प्लेटफॉर्म की डायमेंशंस हैं 22 इंटू 14 इंटू h, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट. मीन्स हाइट इज इक्वल टू 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 इंटू 20 divided by 20 divided by 14. Cancelled, 22 cancelled, 4 5s are 20, means 35/14, 5/2, 2.5 meter. क्योंकि जो प्लेटफॉर्म बनेगा वो आपका क्यूबाइड की शेप का लेगा.
मैंने कहा कि नॉर्मली इन क्वेश्चन की आपको कैलकुलेशंस थोड़ी सिंपल मिलेंगी एज कंपेरिजन टू द प्रीवियस वंस, बिकॉज इसमें टर्म्स कैंसल्ड हो जाती हैं। एक्स्ट्रा बुक में डिफ़िकल्ट हो सकते हैं बट एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस सिंपल कैलकुलेशंस में ही कवर्ड होंगे। फोर्थ, ए वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर इज डग 14 मीटर डीप। वेल मीन्स वही सिलेंड्रिकल शेप है। अर्थ इज टेकन आउट and spread evenly all around in the shape of circular ring of width 4 meter to form the embankment. Find the height of the embankment. मीन्स ये फिगर ऐसे बनेगी कि मान लेते हैं ये आपने सिलेंडर की तरह से जो अर्थ यहाँ से निकाली सिलेंड्रिकल शेप में, जिसका डायमीटर आपके पास 3 मीटर था एंड जो हाइट है, जो डीप है, वो 14 मीटर है। तो वो आपने जो अर्थ है वो बेसिकली इस तरीके से स्प्रेड कर दी। ये मतलब बीच में तो आपका वैली है, ये बीच में तो ये वाला जो सिलेंडर है ये वाला वैली है, ठीक है। ऊपर आपने इस टाइप से चारों तरफ गोल एक रिंग शेप में एम्बार्कमेंट मीन एक चबूतरा सा बना दिया। हाइट ऑफ द एम्बार्कमेंट निकालनी है, लेकिन जो आपको ये विड्थ दी हुई है ये 4 मीटर है, लेकिन यहां से यहां तक ये टोटल कितना है 1.5 मीटर। रेडियस आधी हो जाएगी, 3/2 हो जाएगी। अब इस क्वेश्चन में कंसेप्ट ये बनेगा, वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट फ्रॉम सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द रिंग। ये जो रिंग बनेंगे ये भी सिलेंडर की शेप में बनेंगे, मतलब अंदर के सिलेंडर का वॉल्यूम बाहर के सिलेंडर के वॉल्यूम से माइनस हो जाएगा। ये फार्मूला क्या लगेगा, पाई r स्क्वायर 3/2 का स्क्वायर इंटू हाइट 14। अब आउटर जो सिलेंडर बनेगा पाई r स्क्वायर का मतलब 5/5 का होल स्क्वायर, क्योंकि पहले ही मैंने 1.5 लिया। हाइट h आपने निकालनी है, माइनस अंदर का स्क्वायर r 1.5 का होल स्क्वायर इंटू हाइट h, कि वेल का जो एम्बार्कमेंट बनेगा वो अंदर और बाहर से हाइट बराबर ही रहेगी। h यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, पाई भी कॉमन आ सकता है। 5.5 प्लस 1.5 मीन कॉन्सेप्ट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगा सकते हैं आप। दिस इज, एक बार और लिख लेते हैं स्टेप्स। ऐड करेंगे 7, सब्ट्रैक्ट करेंगे 4। अब h विल बी इक्वल टू 9/4 इंटू 14 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 4। पाई से पाई मैंने कैंसिल कर दिया। 7 2 जा 14, 9/8 मीटर। दिस इज योर आंसर, दैट इज 1.125। वन 25 इंटू 9, 9 4 जा 45, 18, ठीक है। अगर आप बुक की कैलकुलेशन देखेंगे तो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड फील हो सकती हैं, बट मैं सारी टर्म साथ साथ कैंसिल करता हूँ।
ये समझ लेना कि जो एम्बार्कमेंट बनेगा वो गोल बनेगा, इसकी कुछ ना कुछ हाइट्स होंगी। मतलब ये तो मैंने बेसिकली ऐसे बनाया, बट ये बनेगा इस सिलेंडर की शेप में, ऊपर एम्बार्कमेंट बनेगा, नीचे कुछ हाइट देंगे। क्लियर? तो मैंने समझा दिया है कि जो इसकी अर्थ है दोनों तरफ फैला दी गई है, और कई बार ये क्यूबाइड की शेप भी ले लेता है। क्वेश्चन नंबर 5, ए कंटेनर शेप्ड like a right circular cylinder having diameter 12 centimeter, height this, is full of ice creams. Means कोई सिलेंडर की शेप है और जिसकी वॉल्यूम्स दे रखी है। आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड into the cone of height this and diameter this having a hemispherical shape on the top. Find the number of such cones which can be filled. देखिए क्वेश्चंस में थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, बट बस आपको समझना है सिलेंड्रिकल शेप्स का तो आपके पास कंटेनर है जो फुल ऑफ आइसक्रीम है। मीन्स इसकी डायमेंशंस पहले आप अलग मेंशंस कर लें। इसकी डायमेंशन 12 सेंटीमीटर और ये डायमेंशंस आपके पास 15 सेंटीमीटर हैं। इज इट क्लियर? और इसमें से आपने इस टाइप के कॉन को फिलअप करना है और ऊपर हेमिस्फेरिकल एक सॉफ्टी बनानी है जिसकी हाइट तो आपके पास 12 सेंटीमीटर है और डायमीटर जो है वो 6 सेंटीमीटर है। जब आप ये डायमेंशंस लिख लेंगे तो फिर रीडिंग बार बार नहीं करनी पड़ेगी। अब स्टेटमेंट देखिए क्या बनेगी। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फुल ऑफ आइसक्रीम will be equal to n into volume of cone plus volume of hemisphere। n जो है वो नंबर ऑफ कॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब आपने n ही निकालना है कि कितने कॉन फिलअप होंगे। ऊपर वाले से पाई आर स्क्वायर का मतलब 6 का स्क्वायर इंटू H15, नीचे वाले से 1/3 पाई आर स्क्वायर मीन 3 स्क्वायर, H मीन्स 12 प्लस 2/3 पाई आर क्यूब मीन 3 का क्यूब। कैलकुलेशंस के नाम पे ये 3 कैंसल्ड हो ही रहे हैं, पाई से पाई भी कैंसल्ड हो गया, तो यहाँ 36 इंटू 15 तो ठीक है, नीचे एक 3 कैंसिल होगा तो 36 ही बचेगा, प्लस एक 3 बचेगा तो 18 बचेगा। अगर जब मैं 18 कॉमन लेके करता हूँ तो 2 इंटू 15 अपॉन 2 प्लस 1, तो 2 इंटू 5 दैट इज 10। तो नंबर ऑफ कॉन जो है वो 10 आ जाएंगे। हाउ मैनी कॉन दे कैन बी फिल्ड अप इज 10। थ्योरी एक ही लाइन में लिखनी है कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फुल ऑफ आइसक्रीम इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द कॉन प्लस वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर। मीन्स इन वन लाइन यू विल गेट द आंसर। वॉल्यूम ऑफ द कॉन का फार्मूला लिखिए, जो डायमेंशंस हैं आर रेडियस लेट करने की बजाय फिगर के साथ ऐसे लिखें, कभी भी आपके सम्स में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। Let us take question number 6. How many silver coin 1.75 centimeter in diameter and thickness 2 mm is to be melted in and to form a cuboid of dimensions this? Is it clear? अब जो mm है इसके आप पहले सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट कर लेंगे,
जो सिल्वर क्वाइंस है जो सिल्वर क्वाइंस रहेगा दैट इन द शेप ऑफ सिलेंडर, ज्योमेट्रिकल फिगर ये सिलेंडर की शेप रहेगी, ठीक है। ऑल्दो इसकी हाइट थिकनेस कम होती है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मीन्स जो डायमीटर दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर, लेकिन जो हाइट दे रखी है वो 2 mm है, मीन्स 2/10 सेंटीमीटर। यूनिट सेम करने पड़ेंगे, बट ठीक है। मेल्टेड करके आप क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिल्वर coin into n is the number of silver coin, is equal to volume of cuboid, जो भी आपको डायमेंशन दे रखी हैं, ठीक है। सिल्वर की एक ब्रिक बना देंगे आप। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, तो 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5 डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। क्लियर? कैलकुलेशंस करते हैं। 55 इंटू 10 इंटू 35, एक 10 कैंसिल कर लेते हैं, एक 10 ये नीचे आ जाएगा इसका। पाई का मतलब 22 इंटू 7 ऊपर दे देते हैं, इंटू 4 और 2, एक 2 ही ऊपर देते हैं, तो 1.75 इंटू 1.75 इंटू 4 जीरो में ऊपर दे देते हैं। एक तो कैंसिल्ड ही होगी, 3 रहेगी, ये कट गया, यहाँ से 5 आ गया। अब 35 इंटू 5 175 होता है, 35 इंटू 5 175, तो बेसिकली 25 से कैंसिल करेंगे तो 400, तो नंबर ऑफ कॉइन्स 400 आ गए। तो 400 कॉइन को अगर जो आप मेल्ट करेंगे तो आपको इस टाइप का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 7। ए सिलेंड्रिकल बकेट 32 centimeter high and the radius of the base is 18 centimeter is filled with sand. Then the bucket is emptied on the ground and form a conical heap of sand is formed. If the height of the conical heap is 24 centimeter, find the radius and slant height of the heap. सिंपल क्वेश्चंस हैं, कोई बड़ी मुश्किल वाली बात नहीं है कि वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल बकेट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सैंड कॉन। अब आप सिलेंड्रिकल बकेट बना लें ताकि डायमेंशंस लिखी जा सकें, और एक आप सैंड कॉन बना लें। अब सिलेंड्रिकल बकेट की जो डायमेंशंस हैं 32 एंड 18 सेंटीमीटर, हाइट 32 है और रेडियस इज 18। जो आपके पास कौन बन रहा है उसकी हाइट आपको 24 सेंटीमीटर दे रखी है।
ये डायमेंशंस आपके पास गिवन में हैं। पाई आर स्क्वायर एच लगा लो, 18 का स्क्वायर इंटू हाइट 32 इज 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच इज 24। पाई से पाई कैंसल्ड, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 18 इंटू 18 इंटू 32 डिवाइडेड बाय 8, दिस इज 4। तो आर विल बी इक्वल टू 18 इंटू 2 दैट इज 36 सेंटीमीटर। बिकॉज आप ये देखो ना 18 इंटू 18 है, आगे यहाँ पे 4 को 2 इंटू 2 लिख दिया। जब आर स्क्वायर था तो आर लिखना कितना इजी हो गया। आप इस कैलकुलेशंस को नोट करेंगे तो मल्टीप्लाई करने में एनर्जी वेस्ट ही नहीं होती। अब स्लांट हाइट एल निकालना, दैट एवरीबॉडी नो दैट इज आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एच इज गिवन टू बी 24 स्क्वायर एंड इट इज गिवन टू बी 36 स्क्वायर। अगर जो मैं बाहर 12 ले लूँ 12 का स्क्वायर तो अंदर 4 बचता है और 9 बचता है, तो 12√13। कैलकुलेशन पे ध्यान दें, कॉमन के ऊपर जोर दें, क्योंकि 12 स्क्वायर कॉमन आने से एकदम कैलकुलेशन सिंपल हो जाएंगे। मैंने आपको कहा इस क्वेश्चन की कैलकुलेशन कंपैरेटिवली पिछली 2 एक्सरसाइज से इजी हैं। क्वेश्चन नंबर 8, वाटर इन ए कैनाल 6 मीटर वाइड एंड 15 मीटर डीप इज फॉलोइंग विद ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। देखिए जो कैनाल है दैट ऑलवेज टेकन इन द शेप ऑफ क्यूबाइड। ठीक है, ये बात ध्यान में रख लेना, always in the shape of cuboid whose length will find out 10 किलोमीटर पर आवर। मीन्स स्पीड से हम लेंथ निकाल लेंगे 10 किलोमीटर पर आवर। मीन्स 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट इज इक्वल टू 10 किलोमीटर। इसका मतलब 1 मिनट में जो आपको लेंथ मिलेगी 10/60 किलोमीटर। लेकिन इस क्वेश्चन में 30 मिनट्स में पूछी गई है, तो 1/6 इंटू 30 विल बी इक्वल टू 5 किलोमीटर। जो लेंथ रहेगी इस क्वेश्चन की वो बेसिकली 5 किलोमीटर रहेगी। एंड इफ इट इज 5 किलोमीटर, पूरा क्वेश्चन मीटर में है, तो ही विल कॉल इट 5000 मीटर। और ब्रेड्थ जो है विड्थ होती है दैट इज गिवन टू बी 6 मीटर, और हाइट जो डेप्थ है वो 1.5 मीटर है। हाउ मच एरिया इट विल इरीगेट, जो एरिया इरीगेट होगा वो भी आपका लेंथ इंटू ब्रेड्थ निकलेगा। एरिया टू बी इरीगेट इन 30 मिनट्स, तो मैंने वहां से 30 मिनट्स उठा लिए, विल बी इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट विल ऑलवेज बी एरिया टू बी इरीगेट मीन वॉल्यूम ही निकालना, तो बट ये एरिया इंटू हाइट आ जाएगा टोटल। तो आप एरिया को ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कितना मीटर आपको पानी खड़ा करना है? 8 सेंटीमीटर। ना 8 सेंटीमीटर के आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे, दिस विल बी 8/100 मीटर। अब यहां से आपकी एक लाइन क्या बन गई कि द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन कैनाल विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ वाटर
to irrigate the field. Now this is length into breadth into height will be equal to area into height, and area you have to find out, that is 5000 into 100 into 6 into 15 by 10 into by 8. कैंसिल कर लेते हैं, 3 4 इसको 1 2 5 0, तो 1250 इंटू 450, तो दिस विल बी 562500 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी मीटर स्क्वायर। और मीटर स्क्वायर का मतलब इसको हेक्टेयर में कन्वर्ट करना है, लिखा है इसने? नहीं, हेक्टेयर का मतलब होता है 100 मीटर स्क्वायर का मतलब 1 हेक्टेयर होता है। 100 इंटू 100 10,000 से मतलब इसको 4 जीरों के बाद, तो इसका मतलब 56.25 हेक्टेयर आ जाता है कि 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 9, ए फार्मर कनेक्ट ए पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कैनाल इनटू ए सिलेंड्रिकल टैंक इन हर फील्ड। अब यहां पे जिस पाइप से उसने कनेक्ट किया वो आप सिलेंडर की शेप लेंगे, मतलब आपको बेसिकली ये समझना है कि इस क्वेश्चंस में मैं कौन सी शेप लेके सम्स को कंप्लीट करूं। तो ये एक आपके मेन कंटेंट्स रहते हैं, मेन पॉइंट्स रहते हैं। ए फार्मर कनेक्ट ए पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर दिस into a cylindrical tank in her field which is 10 meter in diameter and 2 meter deep। टैंक जो है वो भी सिलेंड्रिकल है, मतलब दोनों ही सिलेंड्रिकल हो गए। वाटर फ्लो थ्रू द पाइप एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, इन हाउ मच टाइम इट विल फिल। देखिए ये तो आपका सिलेंड्रिकल पाइप है जहां से वाटर फ्लो कर रहा है, ठीक है। और ये आपका सिलेंड्रिकल टैंक है जो खेतों में लगाया गया है भरने के लिए। पहली बात यह है कि दोनों ही आपके सिलेंड्रिकल टैंक्स हैं। यहां से जो वाटर फ्लो करने की स्पीड है वो 3 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, लेकिन जो इसका इंटरनल डायमीटर है वो 20 सेंटीमीटर है, मीन्स दिस डायमीटर इज गिवन टू बी 20 सेंटीमीटर। जो टैंक आपके फील्ड में है वो बेसिकली 10 मीटर इन डायमीटर है। दिस इज इन 10 मीटर इन डायमीटर एंड 2 मीटर इसकी हाइट है, डेप्थ जो है वो 2 मीटर है। द क्वेश्चन इज कि हाउ मच टाइम इट विल टेक। इस क्वेश्चन में पहली गलती तो यही है कि बेसिकली डायमेंशंस बहुत अलग अलग हैं। तो मुझे लगता है कि सारे क्वेश्चंस आप मिनट और सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें। तो ये जो स्पीड है
बेसिकली 10, ये लो, ये तो मीटर बन गए और ये बन गए सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये पर आवर्स में है, ये सेंटीमीटर पर आवर है, मीन्स 1 आवर में आपके पास इतने सेंटीमीटर पानी फ्लो करता है, और 1 मिनट में ले लेते हैं अपॉन 60 आ गया, 4 जीरोएं बच गई, तो 5000 सेंटीमीटर। ये गलती नहीं होनी चाहिए। अब 10 मीटर से इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो 1000 सेंटीमीटर, इसको 100 से कर दो तो 200 सेंटीमीटर। नाउ द वॉल्यूम ऑफ वाटर टेकन आउट from the pipe will be equal to the volume of water in cylinder in her field। अब यहाँ से पाई, आर स्केयर का मतलब 10 का स्केयर, हाइट का मतलब 5000। दिस इज, ये 1 मिनट्स में है, तो नंबर ऑफ मिनट्स निकालने के लिए मैं यहाँ पे n लगा लेता हूँ। n इज़ द नंबर ऑफ मिनट, कि टोटल मिनट में कितना पानी टैंक में फिल्ड होगा। पाई आर स्केयर 500 इंटू हाइट, n जो है वो मैंने नंबर ऑफ मिनट्स ले लिए हैं, टाइम टू रिक्वायर्ड टू फिल द टैंक्स। ठीक है, पाई पाई कैंसल्ड, एन आपको निकालना है 500 इंटू 500 इंटू 200 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 5000। 3 और 2 5 जीरोज यहाँ पे हैं, चार और 1 5 कट गए, 1 5 से ये 5 कट गया, 50 इंटू 2 100 मिनट्स आ गए। मैंने कोई कन्फ्यूजन नहीं कोशिश करी कि मैंने कहा कि ये 1 मिनट में है, टोटल टाइम आपको निकालना था, मीन्स कितने मिनट में फिलअप करेगा। मैंने कह दिया कि लेट, यहाँ एक लाइन लिख सकते हैं, लेट cylindrical tank will filled in n minutes, कि जो सिलेंड्रिकल टैंक है वो n मिनट्स में फिल्ड करता है। तो वॉल्यूम दोनों की सेम रहेगी, कि बिकॉज दोनों की शेप्स को आपने आइडिया लेना है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस एक्सरसाइज। आई हैव टेकन ऑल द 9 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस एक्सरसाइज। एग्जाम्पल्स आप अपने आप करेंगे कैलकुलेशन इसी तरीके से। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारे सिलेबस में नहीं है, बिकॉज रिलेटेड टू द फ्रस्टम, ये डिलीटेड है। 3-4 क्वेश्चंस ऑप्शनल्स के हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियोज़ में कवर कर लेंगे। ठीक है, लेकिन पहले इसके डायमेंशंस और इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान देना। लास्ट क्वेश्चन में सिर्फ डायमेंशंस का ही फ़र्क था जो मैंने आपको यहाँ पे क्लियर किया।